Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and today we will be discussing the next topic of the chapter metals and non-metals, that is reaction of metals with non-metals and corrosion. Now in the last session we have discussed about various properties of metals and non-metals. Now let us see how a metal reacts with a non-metal. First of all, हमने lower classes में electronic configurations पढ़े हैं. Sodium and magnesium are metals as we know और इनकी electronic configurations are 281 for sodium and 282 for magnesium. Similarly, chlorine and sulfur are non-metals and they have such electronic configuration. It is clear from this कि metals will lose electrons for attaining complete octet and non-metals will gain electrons for achieving stability. In this way, suppose sodium metal loses one electron, it will acquire a positive charge and will become a cation, and a non-metal will gain electron and become negatively charged anion. So in this way we see how a metal becomes a cation and a non-metal usually becomes an anion. Now these cations and anions can combine together to form compounds. Let us see how. Suppose this is sodium atom and this is the one electron which is present in the outermost shell. This is one chlorine atom and these are 7 electrons in the outermost shell. अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को ट्रांसफर कर सकता है. तो सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम विल बिकम positively charged and chlorine now has acquired one electron of sodium and becomes negative charge. Now this positively and negatively charged ions में strong electrostatic forces of attraction की वजह से साथ में combined होंगे and this will form a compound जिसे हम NaCl बोलते हैं. and because ये ions से बना है तो इसीलिए इस तरीके के compounds को ionic compounds भी बोलते हैं या फिर electrovalent compounds भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग एंड लूजिंग इन्वॉल्व है. तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बाउंड होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड कंपाउंड्स होते हैं. एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो मैग्नीशियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स डबली चार्ज्ड कैटायन एंड क्लोरीन अगेन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स क्लोराइड आयन. नाउ एक मैग्नीशियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 2 अलग अलग क्लोरीन एटम्स हैं. एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के पास शिफ्ट होगा तो मैग्नीशियम विल बिकम 2+ कैटायन and chloride will become 1, it will gain 1 electron from magnesium and becomes negatively charged ion and there will be 2 such chloride ions, इसलिए हमने यहाँ पर अंडर ब्रैकेट 2 लिखा है. तो this means that 1 magnesium ion will bond with 2 chlorine atoms or chloride ions. So this will form MgCl2. Again it is an ionic compound. So in this way we can study how metals react with non-metals to form ionic compounds. For more examples like this and their descriptions, you can refer to our book of DNA Education Key Points Science Class 10th. Now let us look at some properties of these ionic compounds. First of all, they are solids, hard and brittle. क्योंकि ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बाउंड होते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, इसीलिए ये सॉलिड्स होते हैं और हार्ड भी होते हैं एंड ब्रिटल भी होते हैं. दैट मीन्स उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं. अगर हम उन पर फोर्स लगाएंगे तो दे विल ब्रेक इनटू पीसेस. नेक्स्ट इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. अगेन क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल एटसेट्रा. यूजुअली वाटर जो होता है इसमें भी कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स, एक पोलैरिटी यानी कि चार्जेस मिलते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में किसी भी तरीके के चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं. केमिस्ट्री में एक सेइंग होती है दैट लाइक बिगेट्स लाइक. क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स खुद चार्ज पार्टिकल्स से बने हैं, इसीलिए ये ऐसे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं जिनमें कुछ चार्जेस हों. जिनमें कोई चार्जेस नहीं हैं इन्वॉल्व, उनमें ये इनसोल्यूबल होते हैं. Next is they conduct electricity in molten state. Now
इन सॉलिड स्टेट दीज आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस का मोशन में होना कंपलसरी है। अगर आयंस मोशन में नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। नाउ क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स और हार्ड होते हैं तो ऑब्वियसली आयंस फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इन्हें हीट सप्लाई करते हैं तो ये मेल्ट होते हैं और तब उस हीट से जो इनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो वीकन हो जाते हैं एंड फाइनली आयंस जो होते हैं वो मोशन में या फ्लो में आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ आयंस मॉल्टन स्टेट में दीज compounds conduct electricity. Now this is all about the reaction of metals and non-metals, and we have to study about one important feature, that is corrosion of metals. हमने देखा है कि किस तरीके से metals को जब हम air या moisture में expose करते हैं तो metal जो होता है वो metallic oxide में धीरे धीरे convert होने लगता है। तो इस conversion से metal की quantity धीरे धीरे कम होती जाती है और metal oxide की बढ़ती जाती है। Ultimately हम ये देख रहे हैं कि metal की क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। सो दिस ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। एक सिंपल एक्टिविटी है जिससे हमें इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर कंपल्सरी फॉर कोरोजन टू टेक प्लेस। सपोज हम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और इन तीनों में हमने आयरन नेल्स डाले हैं। इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब हम आधे टेस्ट ट्यूब में वाटर लेते हैं और इसे कॉक कर दिया है, रेस्ट हाफ पोर्शन एयर से फिल्ड है। सेकेंड में हमने वाटर के ऊपर एक ऑयल की लेयर दी है। ऑयल की लेयर का ये फंक्शन होगा कि एयर का जो सप्लाई ऊपर वाले टेस्ट ट्यूब के पार्ट में है वो वाटर के साथ कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि इस पार्ट में एयर नहीं है, सिर्फ वाटर है। थर्ड में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के हमने क्रिस्टल्स डाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ एयर तो है बट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट मॉइस्चर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट मीन्स यहाँ एयर है पर मॉइस्चर नहीं है। तो आफ्टर सम टाइम इट इज सीन कि ये जो आयरन नेल है इट गेट्स कोरोडेड, यानी कि रस्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है इन टेस्ट ट्यूब ए बट नॉट इन टेस्ट ट्यूब्स बी एंड सी, क्योंकि ए में वाटर भी है और एयर भी है, बी में वाटर है पर एयर नहीं है, सी में एयर है पर वाटर नहीं है। तो दिस एक्टिविटी क्लियरली शोज दैट बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर कंपल्सरी फॉर कोरोजन टू टेक प्लेस। नाउ हमें ये देखना है कि कोरोजन यूजुअली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड और इससे मेटल का लॉस होता है, तो इसीलिए हमें कोरोजन के प्रिवेंशंस के बारे में देखना है। तो उससे पहले हमें देखना है कि किस तरीके के मेटल्स में कोरोजन होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर ब्लैक कोटिंग एक्वायर करता है बाय रिएक्टिंग विद सल्फर प्रेजेंट इन द एयर। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है, कॉपर कार्बोनेट। आयरन बोथ मॉइस्चर एंड एयर से कंबाइन करके रस्ट फॉर्म करता है विच इज ब्राउनिश इन कलर। फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O, यानी कि आयरन ऑक्साइड जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाउंड है। अब इस तरीके के फिनोमिनन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। इससे हमें कोटिंग बना लेते हैं मेटल के ऊपर और मॉइस्चर या एयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मेटल नहीं आता। क्रोम प्लेटिंग में हम मेटल के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। क्रोमियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर बना के उसे प्रिवेंट करता है। गैल्वेनाइजेशन में यूजुअली आयरन या स्टील आर्टिकल्स पर हम जिंक की कोटिंग करते हैं। अगेन जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो एटमॉस्फेयर की एयर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर बनाता है और ये ऑक्साइड लेयर फर्दर कोरोजन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट इज एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब होता है जब हम मेटल्स को मिक्स करें, यानी कि मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। इससे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं मेटल्स की। फॉर एग्जाम्पल प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए ये कंस्ट्रक्शंस में यूज़ नहीं किया जा सकता, बट आयरन को अगर हम निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर दें, उसको एलॉय कर दें, तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है एंड स्टेनलेस स्टील इज हार्ड एंड इट डज नॉट रस्ट। सिमिलरली अगर एक मेटल आउट ऑफ द डिफरेंट मेटल्स इन एन एलॉय, अगर एक मेटल मर्करी है तो इस तरीके के एलॉय को हम एमैल्गम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव
alloys with lower melting points. Usually metals have high melting points, लेकिन वही alloys अगर उन metals के बन जाएं तो उनके melting points low होते हैं. For example, brass is an alloy of copper and zinc, bronze is an alloy of copper and tin, solder is an alloy of lead and tin. So these are some examples of alloys. For more examples, you can log into our website or refer to our book of DNA education. Now the next topic is 24 कैरेट गोल्ड. हमने यूजुअली सुना है कि लोग कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड होता है, बट प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसीलिए इजीली ज्वेलरी पीसेस में वो नहीं फॉर्म किया जा सकता. अगर हम इस गोल्ड को सिल्वर या कॉपर के साथ एलॉय कर देते हैं तो ये सॉफ्ट की जगह थोड़ा हार्ड हो जाता है और इसको डिफरेंट शेप्स एंड डिज़ाइंस में फ्रेम करना ईजी होता है. Usually out of 24, 22 parts is pure gold and 2 parts silver या copper होता है उसमें alloyed. इसीलिए उसे 22 कैरेट गोल्ड कहा जाता है बिकॉज बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो या तो सिल्वर या कॉपर के होते हैं. तो यूजुअली 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ 24 कैरेट गोल्ड. Another method to prevent corrosion is anodizing. हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि मेटल्स जो होते हैं यूजुअली एल्यूमिनियम वो एयर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं जो फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करते हैं. एनोडाइजिंग में हम एल्यूमिनियम को एनोड पर रखते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एनोड पर इवॉल्व होता है और ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर को और ज़्यादा थिक कर देता है जिससे कोरोजन प्रिवेंट हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. होप दिस हेल्प. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.dnaeducation.com. थैंक यू.